एंड एसएमओ डॉक्टर भरत मेहता हैं। मैं सभी एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करती हूँ। मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम किस उसमें कर रहे हैं अपन। ये डिफिकल्ट टू ट्रीट केसेस को प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारे एम्स जो है टीबी प्रोजेक्ट राजस्थान के वो ये हैं कि ट्यूबरक्लोसिस फ्री राजस्थान with zero deaths, disease and sufferings due to TB. And goal is global TB elimination by 2025. Objectives हैं decrease the incidence of TB disease and improve the quality of care for DRTB patients and to reduce the estimated prevalence rate to achieve the zero catastrophic cost for affected families due to TB. ये हमारे एम्स हैं टीबी प्रोजेक्ट के। इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो ये है कि the focus area of the program is to bring down the morbidity and mortality among all TB patients, HIV and DRTB patients, and reduce and cut the chain of the TB transmission in the community. इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे स्पोक्स सारे DTOs एंड ऑल MODTs एंड ये सब लोग रहेंगे और spokes can present any challenging or different case for discussion. If there is a difficult to treat case, हम उसको प्रेजेंट करेंगे और डिस्कशन करेंगे सारे DTOs से स्टेट के, जिससे कि उसको ट्रीट करने में और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकें। Apart from a case, patient case, a challenging situation can also be presented. कोई भी किसी भी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन हो वो भी अपन इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। Examples of cases may include challenges and identification of pathogens, unusual susceptibility results, interpretation of AST results specific to organism and site of isolation, and difficult case किसी भी तरह का हो। इसमें अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो रहेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट इन प्रोग्राम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड DRTB केस मैनेजमेंट्स, क्रॉस लर्निंग बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी केस अगर डिफिकल्ट टू ट्रीट में आता है जिसको अपन सारे डिस्ट्रिक्ट के DTOs एक्सपर्ट्स मिलकर के सॉल्व करेंगे। शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस फॉर पेशेंट सेंटर्ड इंटरवेंशंस, ये हमारे रहेगा। और इसमें जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, इसमें स्टेट TB सेल, इको TB हब, STO ऑफिस जयपुर एंड एडमिन सर STO ऑफिस जयपुर राजस्थान, ये सब इंक्लूड रहेंगे। और हमने अभी इसको once in a month प्लान किया है। आगे अपन डिफिकल्ट टू ट्रीट केसेस को twice in a month कर सकते हैं एंड इट इज अराउंड 1.5 hour in 1 month और twice in a month ये ऑर्गेनाइज रहेगा। आज का केस हमारा डिफिकल्ट टू ट्रीट केस में डॉक्टर मोदी DTO फ्रॉम बीकानेर प्रेजेंट करेंगे और डॉक्टर गुंजन सोनी सर एज एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन करेंगे। एंड डिस्कशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केस प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर मोदी DTO बीकानेर। सर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। स्क्रीन शेयर करो, हिंदी कर देगा, सही कर देगा। नहीं हमारे वाली स्क्रीन जो अपन ने निकाली थी, हाँ पूरा ऊपर ऊपर, अरे इसी में है, इसमें नहीं, इसमें बैक करो। बड़ा कर दो ना स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे करो।
Good morning. Myself, Dr. C.S. Modi, District TB Officer, Bikaner. I am presenting difficult to treat TB clinic TB cases. This is the drug sensitive case, which is in the district Bikaner and coming regularly since last 8 years for their treatment to the TB clinic. Sir, this case was also admitted twice a time in the our respiratory disease hospital also. And in the corona period, this is also admitted for the respiratory complaints, and she improved some of the respiratory complaints, but not of the tuberculosis. She is this is her patient details. 26-year female student, Bikaner residence is Bikaner, and total duration of illness is 8 years. This was there is chief complaint: shortness of breath in 6 months, fever 15 days, cough, weakness, and no weight gain. Basically, since last 2 years, there is no weight gain in these patients. This is the past history, which is very important. Patient developed pulmonary tuberculosis in 2013. That time sputum positive. At that time, patient take ATT for 6 months and improve. Then patient again developed pulmonary tuberculosis in 2017. Again, that is sputum positive. At the time, patient ATT for 6 months and improved. In both episodes, no drug sensitivity test, CPNAT and LP was done. Patient developed again pulmonary tuberculosis in 2019, 4th of the June 20 sputum positive, and CBNAT is R sensitive. At this time, patient take ATT for 6 months but not improved. Patient developed sign and symptoms of pulmonary tuberculosis. CBNAT was done on the 27th of the March 2020. Result was R sensitive. Patient take ATT continuing ATT from 4th of the June 2019, and patient not improving again. Sputum and CBNAT was done on the again on the April 2020, and result was sputum positive R sensitive. Sir, in the follow-up, patient also came in the 28th of the July. Again, sputum positive, CBNAT is R sensitive. And again, in the follow-up time on the 19th of the November, first line LPA was sent, and second line LPA was also sent to the 11 November of the 2020. First line LPA is R and H sensitive, and result of second line LPA was also FQ and SLI sensitive. On follow-up, patient again sputum positive on the Jan, first of the Jan 2021 to the 21, and the first line LP is same results is there, RNH sensitive. On the follow-up, again on the 24th of the April 2021 and 24th of the June 20, sputum was negative. The patient is clinically not improving. This is family history is very important. Mother developed pulmonary tuberculosis in 1995 and 2011 and died in 2020. One sister and one brother never developed sign and symptoms of tuberculosis. And this is X-rays of this patient. This X-ray was taken on the 31st of the July. There is multiple shadows in the right side, almost all of the lung, and multiple cavities in the lung. And this is the other X-rays which are continuously taken on the 24th of the June 2021, looking some improvement. And this is taken on the 18th of the Jan. This X-ray was 18th of the 9. Now patient is taking ATT. Sir, this is sir. Our point of discussion is what will be the management plan for this patient, and what other investigation required. And sir, important question is what we have to convince the patient. Why by which we have to convince the patient, because patient is asking about their sputum positivity and their sputum examination. Screen share.
जूम चला गया। हाँ, यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पास्ट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट हिस्ट्री, एंड बेसिकली क्वेश्चन इज वही, मतलब हम लोग पेशेंट को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि स्टूडेंट है और बार बार स्पुटम पॉजिटिव आती है और बार बार एक ही क्वेश्चन उठता है कि सर मैं कितनी बार दवाई लूंगी और मेरी ये पॉजिटिविटी कब नेगेटिव में चेंज होगा, या नेगेटिव में चेंज होने के बाद वापस पॉजिटिव आ जाती है। और हमने सर इसके लिए जब भी सेमिनार करवाते हैं तो मैंने बीच में आपको शेयर भी किया है कि ऑलवेज आर सेंसिटिव। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज सुनना। हाँ सर, एम आई ऑडिबल सर? यस सर, मैम आ रही है, सुनीता मैम बोलेंगी सर। सर ठीक है सर। जी, अब स्पोक्स में से हमारे डीटीओज में से कोई भी इन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पे बताना चाहें अपने व्यूज़ तो प्लीज़ वेलकम। एंड सर डॉक्टर गुंजन सोनी सर अपने एक्सपर्ट्स कमेंट्स देंगे। Good morning, everybody. I'm Dr. Gunjan Soni, SCF Chairperson, Rajasthan. This is a very interesting case, and we are encountering lot of cases. We have such series of 18 cases where every time the CBNAT is sensitive, LP is sensitive, and what to try, we want to learn from the expert whether to go for surgery in type of cases where there is limited disease. But we can't try MDR or XDR treatment in this, because the drug resistance is not there. Every time the sputum is negative, sputum is positive, and it's always sensitive. Good morning, everybody. Am I audible, Dr. Soni ji? Yes, sir. तो मैं डॉक्टर सोनी जी के कमेंट सुन नहीं पाया, थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? Sir, every time the sputum is positive and it is the CBNAT and LP is sensitive, the patient is coming recurrent episode of recurrence is there. In my think that lung का जो एक्सरे है वो उसमें मल्टीपल कैविटीज हैं, उस कैविटीज में मेरे ख्याल से इसमें प्रोलॉन्ग कर दें ट्रीटमेंट तो बेटर रहेगा. In spite of 6 months we can try for 12 months. एक तो ये है पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है, we can in a limited disease we can try for the surgery, because we have 18 such cases where this problem is occurring. The patient cannot be labeled as drug resistant tuberculosis and he has to be put on the drug sensitive tuberculosis. So in my view, when the shadows are soft, we should prolong that anti-tubercular treatment for another 6 months for the proper cure of the patient. This is my suggestion. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर सोनी जी. मैं भी आपके बात से सहमत हूं
और दो चीजों को मैं ऐड करना चाहूंगा एक्सक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, इट इज नॉट ए केस ऑफ एनटीएम। कभी कभी कंफ्यूजन होता है बिकॉज सीबीनाट इज पॉजिटिव, इट इज नॉट ए केस ऑफ एनटीएम. It is not a drug resistant case also because sensitivity is there and there is radiological improvement in the serial X-rays after giving the ATT, as I think. And you rightly said the prolongation of the treatment is the only treatment in this case. Now question remains that should we prolong the CP or should we prolong the IP in this case? Sir, better to prolong the CP. CP should without paragenamide. Because pyrazinamide का 2 महीने का ही वो है, sterilizing action is only for 2 months. We need a proper clearance of the cavities जो है, जो dormant bacilli है, उनका killing के लिए we want to prolong the treatment. ठीक है, तो डॉक्टर मोदी जी एक तो आप इसका सीपी को फर्दर 6 मंथ्स के लिए प्रोलॉन्गेशन का डिसीजन ले लें, और दूसरा मुझको लगता है कि फिजियोथेरेपी एंड प्रॉपर परकशन ऑफ द चेस्ट so that more and more expectoration can come out and the cavities which are there they can become empty. I think that will also help in reducing the load of the bacteria. You are right, sir. Bikaner is the only medical college in Rajasthan where we are having a full-fledged chest physiotherapy clinic in our department with 2 physiotherapists full-time, and we have a latest equipments are there. So we are trying the physiotherapy, chest physiotherapy in every patient of difficult tuberculosis, COPD, and post-COVID fibrosis. So northern India में Bikaner is the only medical college where we are having the best chest physiotherapy available in that department. तो सर आप उसका थोड़ा फायदा लें और उसको भी इसमें एंगेज करें, और मुझको उम्मीद है कि ये केस तो नॉन डायबिटिक होगा और नॉन HIV होगा। सर वो दोनों HIV डायबिटीज दोनों नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, पेशेंट इज यंग और कोई एडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द चांसेस कि मेरे को जहां तक लगता है सर, ये जो मल्टीपल एक्सरे में जो मल्टीपल कैविटीज हैं इसमें बेसिलाई रह जाती है और वो बाद में वो ग्रो कर जाती है, दैट कॉजेज अ रिकरेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसमें यही है कि वी वांट, मतलब वी कैन प्रोलॉन्ग द CP फॉर अनदर 6 months unless and then we can go for a culture also, कि भाई माइक्रोबैक्टीरियम कल्चर भी करा लें कि ग्रोथ तो है नहीं, देन वी शुड स्टॉप द ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा मोदी जी मैं ये भी चाहूंगा कि जो लड़की है, जो पेशेंट है, सर इस बात का एश्योरेंस अपन ले लें कि शी इज टेकिंग द ड्रग्स रेगुलरली and there is no vomiting or whatever it is after taking the drugs. सर एड्रेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है और रेडियोलॉजिकल जरूर इंप्रूवमेंट अपने को दिखता है, परंतु क्लिनिकल इंप्रूवमेंट नहीं होता उसको। अभी उसकी एसेसरी मसल्स वर्क कर रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको बार बार हो जाती है, उसको एडमिट होना पड़ता है इन कंडीशंस के लिए, और बीच में कोरोना में भी उसको 2 बार रेस्पिरेटरी फेलियर में भी चली गई, कई बार थोड़ा ऐसे सीरियस भी हो गई। परंतु प्रॉब्लम ये है कि सर अपन जैसे 6 मंथ भी अपन इसको प्रोलॉन्ग कर देंगे, ये रिपीट होता है, और ऐसा कई पेशेंट्स हैं सर हमारे पास, सीरीज ऑफ पेशेंट्स हैं जो 5 बार ATT ले चुके हैं, सारे राजस्थान में होगा ऐसा, बट हम क्या जवाब दें उनको, मतलब अपन उनको क्या कहें? आज का जो अपना क्लिनिक है उसमें डॉक्टर सोनी जी की अगुवाई में अपन इसको कर रहे हैं, और इनका डिसीजन है जिस पर मैं कम से कम सहमत हूँ कि अभी उसको जब वो ट्रीटमेंट पर है तो उसके CP को अनदर फॉर 6 months उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, दैट मींस टोटल ड्यूरेशन विल बी राउंड अबाउट 1 year। और उसके बाद भी मेरा ये मानना यह है व्यक्तिगत रूप से कि 1 year एंड होते होते हम उसका ट्रीटमेंट बंद न करें, दोबारा से हम और आप साथ बैठे सारे इन्वेस्टिगेशंस को रखें और फिर सोनी जी की दोबारा से राय ली जाए, इन्हीं की राय के बाद उसको स्टॉप या कंटिन्यू किया जाए बियॉन्ड 1 year। सर ये बिल्कुल कर भी रहे हैं सर। अभी जैसे आप लोगों ने गाइडलाइंस दिए कि 6 months में ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, कई बार क्या होता है कि वो जो एक्सरेज है ना कि पेशेंट में सॉफ्ट शेडोज रह जाती हैं,
उनमें भी मैं एडवोकेट करूंगा कि उनमें भी पेशेंट का सीपी प्रोलॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है पेशेंट माल नरिश है या डायबिटिक है, इन पेशेंट में हम लोग इंडिविजुअल केसेस में तो हम लोग प्रोलॉन्ग करते हैं सर। बाकी जो जो हमारे पास नहीं आते या हमारे कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, उनका जल्दी ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। कई बार वो वापस 3 महीने बाद वापस आते हैं, दे कम विद रिकरेंस। तो ये भी जो फिजिशियन है, ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनको भी देखना है कि भी एक्सरे में जब तक क्लियरेंस नहीं है एंड दैट टू अ फाइब्रोटिक लीजन आएंगे तभी उसको अपन हील्ड मानेंगे। अदरवाइज सॉफ्ट शेडोज एक बार तो रिग्रेस हो जाते हैं, देन दे रिकर अगेन सर। ठीक है सर। सोनी जी, मेरा मेरा सबमिशन ये है कि नई गाइडलाइंस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ सीपी को 3 तरह के ईपी में तो प्रोलॉन्ग करने की परमिशन दी रखी है, जैसे बोन ट्यूबरकुलोसिस है या सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस है या डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें तो ऑलरेडी अपने पास परमिशन है टू एक्सटेंड द सीपी फॉर 3 to 6 months। परंतु स्पेशल केस में जैसे ये केस है, आपसे परमिशन लेके आपसे डिस्कस करके और इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें ऐसा मैं नहीं समझता कोई परेशानी होगी। और जब अपने पास सीरीज ऑफ केसेस होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक प्रॉपर ओआर करके अपन सीटीडी को भेज सकते हैं। तो इसमें अगर आप किसी रेजिडेंट को देना चाहें या जैसा भी आप चाहें उसको करके ओआर को, और अपन इसकी प्रोसीडिंग्स को सीटीडी को भेज सकते हैं। ठीक है सर, हम लोग वॉच कर ही रहे हैं। डॉक्टर स्वागत will speak. He is a nodal officer in Bikaner में। डॉक्टर स्वागत is a professor of pulmonary medicine. He is a nodal officer. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, ये इसमें अपन सिर्फ जो एलपीए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का रिजल्ट अपने पास अवेलेबल है, क्यों ना हम इसका कन्वेंशनल कल्चर भी करवा ले, तो क्या बुरा है इसमें? वो भी करवा ले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी एक अपने पास ऑप्शन होना चाहिए। समटाइम्स जो अपने जेनेटिक है एलपीए और ये जो इनकी रिजल्ट का भी अपना चेक हो जाएगा, वो भी एक रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अपन बेटर आंसरेबल होंगे। लिक्विड कल्चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल वो भी अपन को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अपन बेटर आंसरेबल होंगे उसके लिए। दूसरा उनका एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको एक बढ़ाएंगे अपन, ताकि वो जो पेशेंट डिब्लेटेड होता जाता है और पेशेंट दूसरा एक मेरा एक सुझाव ये भी था कि सर जैसे लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस है सर, इस केस के अलावा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो पेशेंट में लिम्फ नोड बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रहती हैं और वो डिसअपियर नहीं होती हैं, तो हम उन केसों में भी सीपी बढ़ाना चाहते हैं। तो मरीज तो वही हमारे पास समस्या लेकर आता है, सर मैं तो ठीक ही नहीं हुआ और फिर यही प्रॉब्लम है सर, मेरी गांठें मेरे, और प्रोग्राम कहता है कि बस यू स्टॉप द ट्रीटमेंट हियर एंड गो होम। पर हमारा एज ए फिजिशियन, एज ए चेस्ट फिजिशियन, ये हमारा सुझाव है कि सर जहाँ पे भी आपके लीजन परसिस्ट कर रहे हैं वहां पे सीपी को बढ़ाने की हमको एटलीस्ट प्रोफेशनल परमिशन दी जाए। ठीक है सर, आपने 2 बातें कही। एक तो जो पर्टिकुलर पेशेंट जिसकी बात कर रहे हैं उसका डाइटरी इंटेक के लिए, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा उसका बीएमआई कितना है? बीएमआई अभी कैलकुलेटेड नहीं है, तो उसका बीएमआई कैलकुलेट कर लें, और बीएमआई कम है तो उसको किसी दूसरे सोर्स से बेटर न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट करें, या मेडिकल कॉलेज में तो वैसे भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। सर पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिकली ठीक है ना। तो अगर बीएमआई ठीक है तब तो न्यूट्रिशन की बात नहीं उठेगी, और बीएमआई उसका पुअर है तो न्यूट्रिशन की बात उठेगी, उसके लिए फिर अपने को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने होंगे। और जो वेट भी ठीक है वो आप देख आपसे, तो फिर उस केस में न्यूट्रिशन की बात नहीं उठेगी। दूसरा जो डॉक्टर शौकत ने कहा कि लिम्फ नोड वाला है, मैं बार बार न केवल इस मंच पर, मैं और दूसरे मंचों पर भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जो पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ सीपी का है इन लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, उसको ऐसे मंच पर नहीं उठाया जाना चाहिए जो एलिजिबल नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, आपने कोई थीसिस की इससे संबंधित, आपने कोई पेपर या ऐसा कोई पब्लिश किया जिससे कि हम सीटीडी को बता सके कि हाँ सर ये स्टडी बीकानेर में या कहीं दूसरे मेडिकल कॉलेज में हुई थी? नहीं, ये तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है सर हमारा, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। नहीं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है सर, सीटीडी नहीं मानेगी। आप इसको पब्लिश करवाइए किसी उसको, या कोई ऐसा ओआर या कोई थीसिस करके उसको दीजिए
क्योंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका कुछ हो सकता है, किसी दूसरे का कुछ और हो सकता है। मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स की समस्या आती है। नहीं, देखो देखो मेरा मानना ये है कि सीटीडी ने जब गाइडलाइंस इशू की है तो उन्होंने भी एक बड़ी कमेटी के परामर्श के आधार पर की है। अगर अपन उनके डिसीजन को के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, आप उसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसी लेवल का अपना एक बात होनी चाहिए। अपन केवल ये कहते हैं कि भाई क्लिनिकली उसमें एक मेरा सर सुझाव ये था कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक 2-3 या डॉक्टरों की कमेटी बने, वो डिसाइड कर ले बीसीपी एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, बस ये बात है। नहीं, पर देखो वो कमेटी तो आप जो गाइडलाइंस बनाओगे, आपसे मतलब है मेडिकल कॉलेज एंड सीटीडी उन्हीं को फॉलो करेगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में हैं, आप इस तरह के 150 केसेस की स्टडी करें। कोई जो सर्वाइकल लिम्फ नोड थे उसमें हमने इस ग्रुप को 6 मंथ्स की टीटी दी, इसमें इतना % रिकरेंस हुआ, इन मरीजों को हमने 9 महीने की दी, ये % रिकरेंस करा, और इन मरीजों को हमने 1 साल की दी, इनमें रिकरेंस कम हुआ। तो ऐसा कोई अपने पास बेस होगा ना, तो अपन किसी लंग इंडिया में या चेस्ट में इनको पब्लिश भी कर पाएंगे और बात भी आगे तक जाएगी। ओके ठीक है ना, सर, तो ये अपन करें उसके बाद। ये सही कह रहे हैं, मरीज को प्रॉब्लम बहुत होती है दवाई की। मरीज फिर कहीं ना कहीं से दवाई अरेंज करने की कोशिश करता है। पूरे राजस्थान में ये दिक्कत है। अच्छा, अपन क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर आउटकम दे देते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में। जैसे आपके वहां से जैसे निर्देश आते हैं अभी आएंगे 2020 के आउटकम दो, हम तो सबके आउटकम दिलवा देंगे। तो एक तो क्या है कि इसमें हम लोग 1-1 महीने से बुलाते हैं मरीज को, ठीक है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम करना होता है 1 मंथ के अंदर फॉलो अप करते हैं। दूसरा क्या है, मरीज फिर दवाई अरेंज करने की कोशिश करता है, चाहे वो किधर से मार्केट से लेगा, नहीं तो कोई इधर उधर से अरेंज करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस चाहिए अपने को। मोदी जी क्लियरेंस है, आज की तारीख में तो क्लियरेंस है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी की 3 मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, उनमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई रेयर केस है जिसमें आप डिसीजन लेते हो उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, कहीं कोई मना नहीं है। रेयर के बारे में गाइडलाइन में कहीं रेयर शब्द नहीं लिखा हुआ है, गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है, सीएनएस टीबी, जॉइंट टीबी, आपका बोन आ गया, डिसेमिनेटेड टीबी। अब अपन डिसेमिनेटेड वर्ड पे भी बहुत चर्चा हो चुकी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसेमिनेटेड। उसमें एक शब्द है लाइक, LIKE, लाइक शब्द है। सम ऑफ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज लाइक में 3 एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए। अब उसके बाद अगर कुछ है तो वो डिसीजन अपना रहेगा, परंतु वो फिर एक ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हर केस में अपन देते जाएं। मैं तो चाहूंगा कि बीकानेर एक पहला जिला बने जिसमें ये स्टडी हो कि लिम्फ नोड में हमने 6 महीने, 9 महीने, साल भर इलाज दिया और ये इनकी रिकरेंस रेट रही। सर इसमें 2 तरह की स्टडीज हो सकती हैं, जैसे कि एक तो अपन लिम्फ इसमें एटीटी दिया, दूसरे ग्रुप में अपने एटीटी दिया और सर्जरी कराया, और फिर देखा कि क्या रिस्पॉन्स है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पेशेंट में जो जहाँ बल्कि लिम्फ नोड होते हैं उसमें हम लोग भी एडवाइज आफ्टर कोर्स ऑफ एंटी टोबैको ट्रीटमेंट की उसको बोलते हैं कि सर्जरी से उसको रिमूव करा लें, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस एंड उसका बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हो जाता है। तो देयर इज अ रोल ऑफ सर्जरी आल्सो इन लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन सर वो है ना, लिम्फ नोड के ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है तो सर्जरी कैसे करें, ऊपर नीचे सफल नहीं लिम्फ होती। नोड जगह ज्यादा होते हैं ना, मल्टीपल दोनों साइड में, तो वो सर्जरी वाले भी इसको एक्सटेंड करते रहते हैं कि मैं बाद में देखेंगे। सर मेरा ये मानना है, आप लोग तो मेडिकल कॉलेज में हैं कि सर्जरी होनी है या नहीं होनी, ये डिसीजन तो सर्जन को करना है। अगर माइन्यूट लिम्फ नोड्स हैं, यूनिल बाइलेटरल हैं, तो उसमें सर्जरी इंडिकेटेड नहीं है। अगर वो मेजर हैं और साइज काफी बड़ा है और प्रेशर सिम्टम्स अगर कोई है तो सर्जरी इंडिकेटेड है, इतना मैं समझता हूँ। तो ये डिसीजन तो सर्जन के ऊपर रहेगा, परंतु अपन फिर भी कोई थीसिस करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं कि जो केसेस में सर्जरी अदरवाइज इज नॉट इंडिकेटेड उसमें भी हम सर्जरी करवाएं और फिर उसके रिजल्ट्स देखें तो बहुत अच्छा होगा। मीनवाइल ये कर सकते हैं जैसे टीचिंग फिजिशियन और डीटीओ मिलकर के डिसाइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो स्टडी पर्पस से सही हो सकता है। जब तक स्टडी आ जाती सर, मीनवाइल टीचिंग फिजिशियन और डीटीओ मिलकर के एक मीटिंग कर लें, 2-3 पेशेंट जब भी इकट्ठे होते हैं, क्या हम इसमें एक्सटेंड करें क्या नहीं करें, तो वो एक मतलब 2 फिजिशियनों का एक राय हो जाएगी और डीटीओ में इन्वॉल्व होंगे तो पता लग जाएगा कि भाई हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, और उसके रिजल्ट्स जो एक्सटेंशन के आते हैं वो हमको भी भेजें, हम भी सीटीडी में बात करेंगे कि भाई ये ना ऐसे रिजल्ट। ठीक है सर, इस केस को यहीं पर समाप्त करते हैं। सर जो पहले अपन ने जो एक बार एनएचएम एमडी साहब से डिस्कस किया था, वो अब गवर्नमेंट ने भी दे दिया है दिशा निर्देश
कि कोविड के पेशेंट का टीबी की जांच कराई जाए और टीबी वाले पेशेंट में कोविड की जांच कराई जाए, बिकॉज हम लोग पहले से ही हम अवेयर थे, हमने ये पहले यहाँ काम पहले चालू कर दिया था। और हम देख रहे हैं कि पेरिफेरी से जो पेशेंट है वो जिनको कोविड हुआ, जिनमें स्टेरॉइड यूज हुआ, उसमें ट्यूबरकुलोसिस का एकदम स्पर्ट आया है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट कोविड का आता है जिसमें जुकाम, बुखार और वेट लॉस हो, तो स्क्रीनिंग शुड बी डन प्रॉपरली, क्योंकि पेशेंट जो आते हैं हमारे जो संभाग से आ रहे हैं वहाँ पे वो लोग इग्नोर करते हैं, दे स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक्स, और चेस्ट एक्सरे भी कराना है, स्पूटम भी कराना है, ट्रूनेट भी कराना है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक लेटर निकाल दें जिससे कि जो एडवाइजरी है वो प्रॉपरली फॉलो हो जाए पूरे राजस्थान में। ठीक है सर, ठीक है, ये वो करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर इस केस के संदर्भ में मैं भी 2 पॉइंट रखूंगा। जैसा कि चर्चा हुई लिक्विड कल्चर, यदि ऐसे केस में लिक्विड कल्चर कराने हैं तो उससे एक हमें बेनिफिट होगा कि यदि उसमें मिक्स इन्फेक्शन है विथ एनटीएम तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। अदरवाइज हमारे मोलिकुलर टेस्ट हाईली स्पेसिफिक है। टीबी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लिक्विड कल्चर कराएंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, लेकिन मिक्स इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रूटफुल होगा। और दूसरी चीज, यदि ऐसे पेशेंट में हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए तो उसका ड्रग कंसंट्रेशन जो सीरम में है वो मालूम पड़ जाए और उसके एलएफटी और अदर चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए हम हायर डोज में यदि ड्रग्स दें तो शायद ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मेरा एक सजेशन है सर। सर जी, जैसा कि डोज हाई करने से ना पेशेंट का जो कंप्लायंस है ड्रग टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये नहीं सोचता कि अपन ड्रग बढ़ा देंगे तो चांसेस ऑफ रिकवरी या वो बेटर हो जाएगा, ये नहीं होगा। देयर इज अनदर कोई फैक्टर इज देयर कि या तो मेरे ख्याल से वो डोरमेंट बेसिलाई उस कैविटीज में, और जिन ऐसे जो पेशेंट हैं तो अक्सर उनके जो लंग है वो डैमेज है, और उसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डॉर्मेंट बेसिले रहती है और वो वापस ग्रोथ करती है। द पेशेंट बिकम सिम्टोमेटिक एंड स्पूटम पॉजिटिव। मेरा ये कहने का मतलब है ड्रग बढ़ाने से ऐसे पेशेंट में टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी एंड पेशेंट की कंप्लायंस कम हो जाएगी। सर पाटनी सर, पाटनी सर, एक दो पेशेंट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, और ड्रग ऐसे इज नॉट इजी। मतलब आप सीरम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो रिफाम्पिसिन और आपके ये आईएनएच उनका बहुत मुश्किल है, और इट इज आल्सो कॉस्टली अफेयर भी है। हम इन बातों को ध्यान रख, मैंने आपसे बात भी की थी, कोशिश भी की कि इस पेशेंट का सीरम कंसंट्रेशन करवाया जाए, और उसमें भी MIBC एक होता है, मिनिमम इनिबिलिटी होता है, एक अप्लाई वो होता है, तो वो बहुत कॉस्टली है सर, क्योंकि यहाँ होते नहीं है, बाहर अहमदाबाद या दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें रहता है सर। और इससे पहले जो पेशेंट था, जो मैंने आपको ऑन द स्पॉट पेशेंट के घर से ही चर्चा की थी, उसकी ड्रग बढ़ाने के बावजूद फिर वो पॉजिटिव आ, हमने उसकी ड्रग भी बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि उसकी कंप्लायंस अच्छी थी। अब आप देखिए सर, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पेशेंट तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर रिपीटेडली स्पूटम पॉजिटिव है, सेम केसेज है, इसी तरीके की बात करना चाहता हूँ, तो उसका क्या करें? सर कुछ और पॉइंट्स डिस्कशन के लिए अगर कोई आगे आना चाहे, कोई बताना चाहे तो प्लीज वेलकम। और एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन था, इसमें हो गया प्लाज्मा, ठीक है सर, ये डिस्कस हो गया। और कोई भी पॉइंट किसी को हाईलाइट करना हो डिस्कशन के लिए तो वेलकम। ओके, आप इको इंडिया के सीनियर मैनेजर मिस्टर गौरव तिवारी, आपको कुछ इको हब या अपन जो ये केस डिस्कशंस का ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे। सर वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम पहले तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका ये क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर, एसटीओ सर एंड मैडम, यू हैव डन ट्रेमेंडस जॉब फॉर दैट। आप ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम इसको यूज करने के लिए
हमारा जो एको मॉडल है वो आपने क्लिनिकली फॉलोड किया है, डायडेक्टिक, डिस्कशन, केस प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन मैडम। तो केस प्रेजेंटेशन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे अभी आपने देखा कि ये जो केस प्रेजेंट हुआ है बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है हमारा, काफी अच्छा लोगों को इससे आगे आएगा, और सीटीडी में जो हमारे को डीआरटीबी केसेस भेजने हैं उससे हमें हेल्प होगी। तो दिस इज द मैम एको प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर to give us the opportunity to start a program with you, ma'am. Is there anything else we can support you? Ankur is there, he's always be there to support you for all these things. आपको कुछ भी हो please let us know, ma'am. एक कंसर्न था मुझे आपको बताने के लिए, मेल भी किसी से शायद मतलब कंफर्म कर लेना था, so I can go with this one. थैंक यू सर। मैं सभी डीटीओ सर का स्वागत करती हूँ कि अगर इसी तरह का कोई भी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट केस आपके पास आता है और आप डिस्कशन के लिए रेडी हैं उस केस पर, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले सेशंस अपन हर महीने एक बार 1 to 1.5 आवर्स के लिए करने जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के केस की डिस्कशंस, ओपन डिस्कशंस होंगी, सबका उसमें राय देगी। एक्सपर्ट्स भी अपने ओपिनियंस देंगे, और इस सेशन के एक्सपर्ट्स के लिए डॉक्टर गुंजन सोनी को थैंक्स एंड डॉक्टर मोदी को केस प्रेजेंटेशन के लिए थैंक्स, एंड एसटीओ सर के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर मोती आसनानी जी, आपसे Thanks to all. It is a good platform to discuss difficult treated cases in which there is a problem. अपन लोग इसको ये ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम में और अच्छे से उभर करके आएगा, जिससे कि अपन को जो टीबी एलिमिनेशन के अंदर टू ब्रेक द चेन ऑफ द ट्रांसमिशन और मॉर्बिडिटी और डेथ, रिड्यूस द डेथ रेट। तो अपन लोग जो भी केस है उसको इस प्लेटफॉर्म के जरिए डिस्कस कर सकते हैं, और आगे भी जो प्रॉब्लम्स आती है अगेन जो इसको वापस अपन उस केस को ले सकते हैं, इसका कैसे इसको मैनेज करेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू डॉक्टर सुनीता, ऑल DTOs, STO सर एंड इको प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन के लिए किसी भी तरह का कोई केस आप हमसे शेयर करें, वेलकम, और जो भी होगा हम आपको मेल से बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बताइए। मैडम, एक केस है जहाँ पे 2 में एमटीबी डिटेक्टेड एंड आर इनडिटरमिनेट रिजल्ट था, फिर हमने फर्स्ट लाइन एलपीएम भेजा तो एमटीबी डिटेक्टेड एंड आर रेजिस्टेंट हो गया। तो थर्ड जो कंफर्मेटरी जो चॉइस टेस्ट है वो अभी सीबीनाट अवेलेबल नहीं, तो हम क्या दोबारा एलपीए भेजें या उसका डिसीजन आर रेजिस्टेंट मानते हुए हम कर सकते हैं? जी सर, ये मैं डॉक्टर तारुण पाटनी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, सर एक मिनट पाटनी जी, अगर सर हो तो। हाँ जी बिल्कुल सर है। आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे? सर गुड मॉर्निंग सर, सिरोही से संजय बोल रहा हूँ सर। जी सर 2 में एमटीबी डिटेक्टेड और आर इनडिटरमिनेट रिजल्ट था सर, और फर्स्ट लाइन। आवाज ब्रेक हो रहा है संजय जी, आवाज ब्रेक हो गया, आवाज नहीं आया सर आपका। सर
ट्रू नॉट में एमटीबी डिटेक्टेड एंड आर इनडिटरमिनेट रिजल्ट था सर। जी और फर्स्ट लाइन एलपीए में सर आर रेजिस्टेंट और एच सेंसिटिव था सर। जी इस केस को हम कंफर्मेटरी सर, चूंकि ये डिस्कॉर्डेंस है तो इस केस में एक रिपीट टेस्ट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि अभी आईएलएल के पास नाट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में आप पेशेंट का फ्रेश सैंपल लें और अपने आप एक ट्रू नॉट लगा लें, और जो भी रिजल्ट थर्ड टेस्ट का आएगा वही फाइनल होगा। और आपके वहां लगाने से एक बेनिफिट और होगा कि यदि कहीं पे सैंपलिंग एरर हुआ होगा तो वो भी रूल आउट हो जाएगा। तो थर्ड टेस्ट ट्रू नॉट ही लगाएं सर। बिल्कुल ट्रू नॉट ही है हमारे पास फैसिलिटी अभी आपके पास डिस्ट्रिक्ट में, तो जी। ट्रू नॉट ही लगा दें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बंसल। डॉक्टर बंसल जयपुर सेकंड से। सर इट इज जस्ट अ रिपीटिशन अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रहा था, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में एक्सटेंशन। सर हमारे यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केसेस लगभग 30% आते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटेंड फॉर 3 मंथ, एक्सटेंड फॉर 3 मंथ, एक्सटेंड फॉर 3 मंथ्स डेली प्रॉब्लम आ रही है सर। ये प्रॉब्लम सर पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी है, तो इसके बारे में कोई क्लियर कट आना चाहिए सर। पेशेंट टोटली एसिम्प्टोमेटिक है, सर्वाइकल एडिनाइटिस कुछ भी नहीं है उसको, सिर्फ उसके ग्लैंड है, एंड एक्सटेंड फॉर 3 मंथ्स। क्या करें सर, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं इससे। किससे करें बहस, आईआरडी वालों से करें, किससे करें? कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है सर क्लियर कट। रोजाना पेशेंट आते हैं सर, कल भी आया था, आज भी आया, डेली 1-2 पेशेंट। नॉट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जो पेशेंट चल रहे हैं जो हमारे जीत के थ्रू, वो भी सर सब एक्सटेंड करते हैं। और डीबीटी की प्रॉब्लम आती है इसके कारण हमारा आउटकम डिले हो जाता है। आउटकम हम कैसे डालें सर 6 महीने पे, 5.5 महीने पे, जब पेशेंट को 3 महीना बढ़ा रहे हैं? तो मेरा सर रिक्वेस्ट है एसटीओ साहब से, एसटीडीसी अजमेर से, कि इसके बारे में कोई क्लियर कट कोई सॉल्यूशन हमको मिले जो परमानेंट हो सर। थैंक यू। सर आपके क्वेश्चन को हम एसटी सर से डिस्कस करके आपको जरूर बताएंगे, और अगर आपके पास कोई इसी तरह का कोई केस है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अपन नेक्स्ट मंथ के लिए